even, you know, the beautiful cover drive we saw from Gilshan a few deliveries ago, one run only. And so the demand to find the boundary increases. You take a few more risks to deliveries that aren't necessarily deserving of that. And you know, that's the situation. Badu, what a good spell. You know, Bertel's going well. Tried reverse sweep one time too many. He was really the key. Now we need somebody. There are some Nepal fans with the flag just down in front of us. They will need somebody to come in and show some calm. A couple of wickets for Badu, going at 2.4 and over. That's a issue. Do you rebuild? Can you reset in a T20? No, you just keep going, because virtually everyone can bat down the order here. So you've just got to keep it going. Well, we've had wickets. We've had Bertel bowling, batting rather well early on. But the wickets starting to come. Enthusiastic fans. Glad to watch this match. Well, then, a bunch of Nepalese just below us having an absolutely lovely day, and the players' enclosure dugout is just below them. And we've got one of the Nepalese come and pose for a picture. Captain the mark, we look for a second. There was a mid-fit bonus kill from Ismail Ali. Well, we know what he can do. 61. And a strike rate of over 200 against Mongolia. Slightly different situation here. Would have helped his average coming into this, averaging just over 20. 21 as well. Just think what a ball will do. Let's just knock it around. And Maldives, we'd be quite happy to give them a run of ball at the moment, because that would give them something. If they went to run a ball now, that would give them something to chase. But it's not going to be that, of course. Nepal are going to attack shortly, but yeah, right now, just build. Pick up the singles, just rotate the strike. What they're doing. Of course, they've got Dipendra Airy, they've got Kushal Malla, who will fancy that they're in a bit of form. 10 overs gone. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Minimum 200 from Nepal. Perhaps they might have to recalculate. Who knows? But going for a bit of spin now. Maldives. Yeah, as well as the Maldives have done, I think we need to understand that the run scorers have yet to come in. Porter's in at the moment, he got 60. Mala is still to walk to the crease, and we've got the big 100 and Airy, who's got the world record for the fastest 50. They still haven't walked to the wicket yet. So there's no doubt that Nepal are trying to ring the changes and give everyone a go on what they are presuming will be a quarter-final in a couple of days. We saw in the women's game some of the quarter-finalists, because of the weather, had barely played. So at least the weather's been with us and they can execute these plans. Sometimes it's a dangerous plan to go with, you know, to try and give everyone a go. I mean, the next minute you get bowled out and the other team progress. Two misses and 2 balls, 2 very different shots attempted. Defensive and then going expansive. Jara will have a little watch
walk away from the crease and reflect. He was nowhere near that. He was completed the shot. The ball hadn't even got to him. Slow spin here by Ishmael. There's enough space in that offside just to push and run. But at the moment, credit to Maldives, that's what Nepal are doing. Yeah, just a little rebuild here needed. But again, we find ourselves in a very different situation. Normally, 4 down, you're in big trouble. They've sort of almost turned their batting order around. Oh, they're asking the question. They like it. Umpire doesn't. Well, that would have been a big wicket because Podell is a good player. He's hitting outside the line of off stump. So even though it's going on to hit the stumps, it can't be out. Wide ball, and there's some runs to be had as well. Nepali friends start the cheering, and they'll be happy. That 3 is added to. Oh. You haven't had too many wides. Your friend the wide has been absent by and large so far. Yeah, more discipline. Can't afford to bowl as many wides as has been bowled over the course of the competition. It's just extra balls, and you can ill afford that. Full toss, got away with it, straight to the fielder, just behind square, on the boundary. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट ऑन प्लेट। देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Good from this end, hasn't it? Consistently. There's another wide, but I think we're on 7 wides now, so they are starting to build. You spoke too early. I did. Me and my big mouth. It's tight. It's tight. Just because the left arm is going across the right hand of the ball, always going away from the batter. The open bowler, Nasir back. At 5s. Again, watchful, respectful. Not the fireworks that we saw against Mongolia. Well, Maldives a little bit more experienced in cricketing terms than Mongolia, who were playing in just their first international. And it really was a question of just working out how good Maldives were and how they were going to stand up against Nepal. We know they're a decent team, 17th ranked in the world. But this will give us an indication. They're certainly in there. They're giving Nepal a game. And in some ways, that's what Nepal, as long as they get through, will want. Just to sat up a little bit, but again, taking the single, looking for the second one. Would have been a little foolish, I think it's fair to say. Still at 7-0. You're 100% right. Is that certainly Nepal would not want to have been in this position if you'd have asked them at the toss of the coin before play. But 79 for 4, just under 7s to the over. It's still a very strong position with what's to come. Oh, down the wicket he came. And I think the bowler tried to change the length, pushed it wide, so nobody can speak too soon, but now we've had 3 in short order here. The one
thing I think we can be certain of is that there's not going to be as many world records today. No. Bit breezy today. The trees away to our right, bending. We haven't seen that before. Maybe another factor. Bowlers to take that into account when they ask for which end they like to go. Some will get a bit of drift with it. Not too brisk, but certainly noticeable. Okay, it's well run. It's just a single. And for Maldives, you add a couple of wides into the mix, and then it starts to get expensive, especially in the next 3 balls if they find the boundary rate. Did it under 7 to the over. It's this gone over. under 7 to the It's over. now gone in this above over. 7. It's But now they haven't gone scored above 7. more than a run a ball. They haven't scored It's more than because a of run the a ball. extras. It's because of the extras. Because of the Get a extra run balls. for the wide as well as an extra ball. Get a run for the wide as well as an extra ball. And the wicket again. And that'll go for 4. And that'll go for 4. Footwork from Jar. Looking to perhaps accelerate now. Looking to perhaps Might have accelerate overstepped now. the mark as well. This could very well Might be have a free overstepped hit. the mark as well. This could very well be a free hit. It's difficult to tell when the umpire extends one arm and you tell when the umpire he's extends going one to arm. signal 4. He's That going to was signal for some 4. time. That So he's no extended ball for some bowled, time. boundary. So no ball And bowled, now there will be boundary. a free hit. And now there will be a free hit. And a free hit. It's turning into and a free hit. It's a turning loose into over. what a loose over. It's the line. Back foot cuts the line, so that is a no ball. The front foot can go outside that line, but not the back foot. The back foot cannot cut that line. Well, he might just get one for the free hit. Fielded down on the boundary by Sadin Hussain. Got away with that. Rank long hop to a left-hander. You're preparing yourself to catch it, won't you? I was hoping the umbrella would save us, but thankfully he didn't find the middle of the bat. Still 2 balls remaining from this over, and we've already had 10 from it. That's a reach for it. Nicely played. And they look for 2, and they're going to run hard, and that's great work from Nepal. Oh, one of the third as well. It's good running, but the man in the deep, it's a little bit lazy fielding. Slow to the ball. Nepal recognised that and touched and got through for 2. So the bowler will be a bit frustrated because ordinarily that should just be a single. Expensive over so far. A long over. Needs just to get this one on the money. That's better. Well, expensive over. 13 off it, 12. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके गांव की बहुत याद आ रही है पता नहीं कब जाऊंगी देखेंगे मॉम हे चैंप रेडी फॉर स्विट्जरलैंड नो पापा नो स्विट्जरलैंड कहां दादी के गांव थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी अपनी खुशी पार्ले जी माने जीनियस कैंट से पानी होता है 100% प्योर कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी It's in the air, oh, through the hand and 4. Bell 4 for Nepal. Lucky there. There was a decision to be made here. Do we go for the catch, or do I hang back and prevent the boundary? The decision was to try and go for the catch, short and a for 4. Yeah, Hassan Rashid, brave, but not working out for him. Well, finer than he wanted to, but he'll run hard. Will Rohit Padel get a couple? Will they think about a third? Certainly trying to put pressure on
the fielder, but it is only 2, so a good start. Ismail was economical in the first. ही एटीट्यूड गुलशन झा का रन बनाने की रफ्तार 8.4 रन प्रति ओवर है नेपाल की। प्रयास होगा उनका कि कम 170 180 के आसपास का स्कोर खड़ा किया जाए, प्रोवाइडेड विकेट्स उनके बचे रहें। फुल टॉस पर इस बार फील्डर मौजूद थे, लेकिन फील्डर को रोप्स को भी क्लियर किया। बैक टू बैक ओवर बाउंड्रीज 118 4 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंदबाजी। गुलशन झा लगातार एक के बाद एक छक्का लगाया उन्होंने।
तो जिस स्कोरिंग की रफ्तार को तेज करने का काम नेपाल को, वो फलीभूत होती हुई एक बार लो फुल टॉस पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में पहुंची है गेंद। नासिर वहां पर अजीम बल्कि वहां पर मौजूद थे, फील्ड किया उन्होंने गेंद को। 1 रन का और इजाफा, 119, 4 विकेट के नुकसान पर नेपाल का स्कोर। बढ़िया प्रोडक्टिव ओवर नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू। 14 रन बनाए जा चुके हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल। इस बार मिड लेग स्टंप पर थी, उसे फाइन लेग की दिशा में खेला है, हालांकि फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर मौजूद थे। 2 रन चुराए गए, बढ़िया बल्लेबाजी। 121, 4 विकेट के नुकसान पर नेपाल का स्कोर। 8.75 रन प्रति ओवर के रफ्तार से स्कोरिंग हो रही है। गुलशन पहुंचे 18 गेंदों में 28 पर, स्ट्राइक पर हैं रोहित। 16 गेंदों में 26 रन बनाए हैं उन्होंने। ओवर की आखिरी गेंद, फिर से फाइन लेग की दिशा में खेला, काफी फाइन खेला है। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही चौका। ओवर समाप्त। 14 ओवर के बाद नेपाल 125, 4 विकेट के नुकसान पर। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हर किसी ने तुझ में अपना प्यार है पाया। अमूल the taste. Amul Light, the only thing it's rich in is taste. और इस तरीके से जो बचे हुए ओवर्स हैं उसमें तेज गति से रन बनाने की कोशिश। प्रहार किया गया इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज गुलशन झा के द्वारा। 1 रन के लिए गेंदबाज ने इस गेंद को रोक लिया, थोड़ा सा गति को कम किया। 125, 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 126 इस नए ओवर में पहला रन। सामने है इस समय रोहित पौडेल, जो कि टीम के कप्तान है। 30 रन पर यहां पर बीट किया पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के बाद टपक आया और बाहर की तरफ निकली कोशिश, लेकिन अपना बायां पैर स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए इस बार कप्तान। इस गेंद को इस बार निकाल दिया मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, क्या रोक पाएंगे? 2 फील्डर्स के बीच में सीमा रेखा से बाहर डाइव लगाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। हालांकि मैदान अच्छा है, घास है, कोई चोट के निशान नहीं हो सकते, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया। गेंद को केवल देखते रहे दोनों के बीच में सीमा रेखा से बाहर जाते हुए। और जिस तरीके से अब रनों की रफ्तार को की कोशिश की है, मोबियात घानी गेंदबाज हैं। 104 विकेट के नुकसान पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 2 छक्के पिछले ही ओवर में कप्तान रोहित पौडेल ने लगाए थे। और अब गुलशन झा 29 के स्कोर पर इस गेंद को काफी ऊंचा उठा दिया बैक टू द बॉलर, सिर के ऊपर से। क्या डिस्टेंस दे पाएंगे? रेखा से बाहर। अब देखना ये कि ये 4 रन है या 6 रन है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। गेंद को ढूंढने में थोड़ा समय लगा। देखिए कितना शानदार स्ट्रोक था गुलशन झा का। पिच होते ही गेंद को उठा दिया, काफी दूर तक गई, साइड स्क्रीन की शायद नीचे से निकलकर चली गई। छक्के की मदद से 137, 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से तेज गति से
रन बनाने होंगे। हुसैन सादिन गए थे गेंद के पीछे, जो कि टीम के कप्तान है। एक बार फिर से काफी ऊंचा उठाया, यहां पर फील्डर होना चाहिए पीछे। क्या ये आउट हो सकते हैं? रेयान ने कैच लपका है और इस तरीके से 5वां विकेट गिरा नेपाल का। कल नहीं आए, क्या हुआ? सर वो मेरे सर में सर एक्चुअली सर मेरा मन नहीं था। Be honest, be more milk. Amul. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो नेपाल की आधी टीम पेविलियन में विश्राम करते हुए, और जाहिर सी बात है कि स्कोरिंग का सिलसिला तेज करने की कोशिश हो रही है। मालदीव की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। रसम रशीद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फ्लाइट का समावेश। पॉइंट की दिशा में पहुंची गेंद, 1 रन के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से नए बल्लेबाज क्रीज पर हैं। कुशल मल्ला, तो 2 कुशल हैं नेपाल की टीम में। एक सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और एक अब पहुंचे हैं। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड है। 30 गज के घेरे के अंदर ऑन साइड में सिर्फ एक खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है स्ट्रोक। 2 रन बहुत आसानी से मिलेंगे। कुशल मल्ला और रोहित, जो कि टीम के कप्तान हैं। रन बनाने की रफ्तार अच्छी खासी हो चुकी है। एक समय 6.99 रन प्रति ओवर था, अब 9.13, 9.13 रन प्रति ओवर। कप्तान की पारी खेल रहे हैं रोहित। 21 गेंदों में 36 रन बनाए हैं उन्होंने। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और कोई स्पिनर अगर ऑफ स्टंप के बाहर और इतना बाहर अगर गेंद को पिच करे तो थोड़ा सा ये पता चलता है कि शायद अभ्यास की कमी है। अन्यथा कोई तेज गेंदबाज या स्पिनर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड करे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है। इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ है नहीं, देखना, कंफर्म करना होगा। हालांकि रफ्तार धीमी और आसानी के साथ रन लेने में कामयाबी। 2 रन लिए गए बल्लेबाजों द्वारा। युवान थे वहां पर, फील्ड किया और यहां ओवर थ्रो में रन उपहार में मिलते हुए तो अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ और ओवरऑल जो स्कोर है नेपाल का उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई 15.3 ओवर के बाद 144 5 विकेट के नुकसान पर। रोहित 21 गेंद में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं और कुशल अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। तो नेपाल की टीम में एक और खास बात यह है कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन ज्यादातर समय मौजूद रहा है। रसम रशीद, लो रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं
लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की दिशा में कुशल, उसमें कुशलता का परिचय नहीं दे पाए। फुल टॉस पर गेंद हवा में है और बाउंड्रीज को संभवतः क्लियर किया है। जी हां, एम्पायर का कंफर्मेशन आता हुआ 6 रन। खराब गेंदबाजी रसम रशीद के द्वारा, ऑफ स्टंप के बाहर, फुल टॉस, सारा अवसर देते हुए बैट्समैन को। 15.5 ओवर के बाद 149 रन। कुशल के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का दूर तक निहारा उन्होंने। फील्डर डीप में हालांकि तैनात है, लेकिन उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इस बार फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन की और रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं है। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और रन लेने में कामयाबी। इसके साथ ही 16 ओवर समाप्त हुए और 150 रन नेपाल के पूरे आधी टीम पेविलियन में। वाइड डिलीवरी करार दी गई थी पिछली गेंद और उस पर 2 रन भी जुटाए गए, तो 152 5 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंदबाजी का नमूना। इस बार शॉर्ट डिलीवरी और उसको डिस्पैच किया है। 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। 16 ओवर के बाद नेपाल 158 5 विकेट के नुकसान पर। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। ओके बाय। ओके बाय। कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। 158 5 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति पर अभी भी निर्धारित 24 गेंदें बाकी हैं। सामने इस समय रोहित पौडेल, उन्होंने निकाला जरूर शॉट फाइन लेग पर। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से पौडेल पहुंचे 37 पर और स्कोर लगभग 10 रन प्रति ओवर की दर से 159 5 विकेट के नुकसान पर। कुशल मल्ला ने काफी हाथ दिखाने शुरू किए। 5 गेंदों पर 16 रन बने हैं। आज नेपाल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग, मेरे साथ हैं शिवेंद्र चतुर्वेदी और पिंग फिंग कैंपस क्रिकेट मैदान हांगझाऊ में ग्रुप ए का ये महत्वपूर्ण मुकाबला 19वीं एशियाई खेलों में। बहुत अच्छा मौका था, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर उसको मिस कर गए हसन हाजिक राशिद, और जहां ये कैच होना चाहिए था वहां गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रन के लिए। मल्ला के बल्ले से एक और चौका निकला। मल्ला पहुंचे इस समय 20 पर। ये देखिए सीधी थी गेंद और बल्ले के ऊपर टकराई, मोटा किनारा, और चौकन्ने नहीं थे विकेट कीपर। अनुभव की कमी साफ दिखाई दे रही है मालदीव के खिलाड़ियों में। यहां पर ऋषभ पंत होते या राहुल होते तो निश्चित तौर पर यह कैच होता। 12 चौके 7 छक्के, 163 5 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद मोइवान गेंद डालना चाहते थे लेकिन अपने स्टेपिंग सही नहीं कर पाए, सामने से भी मना किया गया। अंपायर का इशारा। एक बार फिर से जाते हुए गेंद डालने के लिए। दोनों ही टीमें मंगोलिया को हराकर इस मुकाबले में आमने सामने हुई हैं। राउंड द विकेट जाते हुए मुइवान इस गेंद को काफी ऊंचा उठा दिया, कोई मौका नहीं होना चाहिए। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक और सिक्सर कुशल मल्ला के बल्ले से। इस छक्के की मदद से कुशल मल्ला पहुंचे 7 गेंदों पर 24 रन और कुल स्कोर हुआ 167 5 विकेट के नुकसान पर। तेज गति से रन बनेंगे, जितना हो सके अब तेज गति से रन बनाने होंगे ताकि एक
बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है। बहुत सदे हुए बैट्समैन की तरह कुशल मल्ला ने गेंद को डिस्पैच करने के बाद अंतिम समय तक उस पर निगाहें रहती हैं कि जिस लक्ष्य को भेजने के लिए गेंद को भेजा है, क्या वो लक्ष्य भेद पा रही हैं? 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। 19वें एशियाई खेलों में आज 8वां दिन, और ये गेंद इसको कट किया पॉइंट पर, सीमा रेखा पर फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक कि गेंद को मुआवियात घानी के द्वारा फील्ड किया जाता, 1 रन 168 5 विकेट पर। मल्ला पहुंचे 25 पर। अब सामने रोहित पौडेल जो कि टीम के कप्तान हैं, 22 गेंदों पर 37 रन बनाए हैं और पहली बार 10 से पार कर गया है रन रेट, 10.08 ओवर द विकेट जाते। ये गेंद हवा में थी और थोड़ा सा अनुभव की कमी, ये गेंद कैच होनी चाहिए थी लेकिन नहीं, दौड़कर 1 रन पूरा किया पौडेल ने। पौडेल पहुंचे 37 पर, 170 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से जितने रन बन सके तेज गति से रन बनाने होंगे। आखिरी गेंद, और उस गेंद का सामना करेंगे कुशल मल्ला। 8 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं। और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 17 ओवर की समाप्ति, 171 5 विकेट के नुकसान पर। हर स्वाद में बसा, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। पता है, मम्मी आ रही है और दीदी भी महीने भर रहेगी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। Following him around. You know, the way that this has hit the ball, it just keeps going away from him at extra cover, hurtling after it, but it's just a fingertip. Oh. Got away with it. Oh, he's eyeing out this leg side again. Feek went for 23 in his first 2. Hit thick edge down to shorter to third, and it'll be another boundary. Well, 2 big edges. One was a chance, that one wasn't, but it wasn't intended to go there. No, looking leg side, looking to hit this over mid-wicket, but it's a thick outside edge. Third is inside that 30-yard circle. The outfield's quick, but a little bit unfortunate for Rafiq, unfortunate for Marla. I don't think it's going to stop him from swinging. Bottom edge this time. Again, the lack of pace undoing him. Yeah, I almost think there is just that lack of pace for him. He probably wants the ball to come on a little bit better. Well, that is coming, I can assure you, in the quarterfinal. There will be a little bit of pace around. Oh, he's got underneath that, carved over the inner ring of fielders. Well, if that's a save, it's brilliantly done. It's a great commitment. Never gave up. I see it down at deep backward point, running a long way to pull that one back. He got under that quite nicely, just to clear the inner ring. What makes him dangerous, that's good fielding. It makes him dangerous, he can score all around the ground. Stand and deliver. Over the covers, 4 runs. All around the ground, I mean, this is some shot. This is a good shot when the ball is pitched up to you to hit it over extra cover, but when it's back of a length, to be able to stand tall
and just with a flick of the wrist get it up and over extra cover. That takes some doing. He's got some ability, this man. There's no doubt about it. He is dangerous. Bowler did well there, dragging the slow ball. Yes, it was short, but that again, the pace and lack of it, the undoing of the batter. He was wanting to heave that up. सर माल कहीं नहीं मिला। आबे जी, आप इतने यंग इस जंग लगे बुड्ढे के साथ क्या देखा आपने? ना शक्ल देखी ना अकल। नहीं पैसा। अरे कम से कम पैसा तो देख लेते। दिखाओ पैसे। लुट गया। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Not for everyone. It's an important over from Maldives' perspective. If they can keep this to maybe 10, it'll be a good result for them. Well, Padel hasn't had the strike for a while, the captain of Nepal, but he will be eyeing out this leg side boundary. He's fancied the sweep shot throughout his innings. I wouldn't be surprised if he looks at it again. There it goes. Never mind the boundary. It's sailed over the road. Boundary 6. Here again, it's for the bowler to have watched him play and to know that he is going to try and sweep. So you need to drag your length back. And that sort of thinking is contrary to the off spin. He's thinking there's such risk if I drag it back, I get it slightly wrong and you go over the boundary. But you get it slightly wrong. I mean, as you said earlier, the margin for error is so slight here that he went too full. And it's just sometimes you've got to bowl different lengths to different players. Yeah, absolutely. And now he's taken the fielders out of the equation again. Boundary 6. Yeah, I almost feel. And that brings up his 50 in 26 deliveries. But Padel reaching for that. Yeah, he's tried his best to get that wide of off stump, because I think that's the right idea, is to try and get the ball sort of at the wide line and try and force Padel to hit the ball on the offside. But he's still happy to reach and stretch. Well, took pace off. More pace off. Oh, he's coming for a very... Oh, this is trouble. Now, bowler's end. Padel is out. What he was doing coming for a third when Marla was leaning on his bat and saying, I'm not going anywhere. I want to have a fill here. So Padel, well, he sacrifices in a way. He's out for 52 and run out it is. And a 6th wicket down. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी पार्ले जी माने जीनियस केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और जनाब well bowled. Now they'll take. Oh, he was thinking.
by the fielder down there, Tolal. He threw at the striker's end because he still had a long way to go, and the second didn't be taken. So airy now. 7 balls, 198 for 6. Here he goes again. And that's how he does it. He doesn't get the strike for the first ball of the next over, but he finishes the... और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। ये बरेली वाली चाची, ये मजली बुआ, और ये पन्नू मौसी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 को कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Another scary thought is there's 500 runs in 39 overs. And there's some serious hitting and serious scoring. Oh, ball in there, he's coming down to Mala, come on. If you can't do it, get me down there. My strike rate is handy right now. Over 300, over 500. Oh, that's a top edge, and that's out. Or not. Oh no. Oh no. And to add insult to injury, they get through for 2. Well, this was an absolute sitter. And he knew it as well, because he was nonchalant underneath it. This is out every single day, except today. Where's this going? Deep in the crease and slapped down the ground. He will push for a second. They're coming for the second, and they'll get it with ease. They might even get a third. They should get a third, and they will. Well, it's been a calamitous fielding effort in the last few overs from Maldives here. They're giving away too many when they can ill afford it, and 209 for 6 with 3 remaining. And here he gets on strike at last. Difficult to back up the statement I'm going to make, because Arla's got 45 off 19, but I don't think he's hit it as well as well as he would have liked. We'll leave that with HD Ackerman, won't we? Oh, he's hit that straight up in the air. I thought he was going to try and catch it himself. Haziq takes the catch, and that is the end of Aries' breezy stay at the crease. 2 balls, 6 runs, and they lose another wicket. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। No fruits on plane. देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। Few bowlers used. Yeah, it's been used. They've travelled, that's for sure. So, Sompal Kami played in the 2014 tournament in the Asian Games, and he pushes it up. He's settling for 1 only. Yeah, 1 not out and says to Mullah, go and get a half century. You've got 1 delivery to get 5, so it's got to go out the ground.
Where's the game gone when 45 from 19? Do you want to work that one back, or should we leave it there? But I was privy to his 100, so I yes, understand where I'm coming from. And that is in the air, and it'll bounce short of the field at deep mid wicket. They'll come for, in the end, 3 or 2 it was, yes. So he goes to 47, and it ends in a frantic scurry for runs. Not quite the explosive. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके गांव की बहुत याद आ रही है पता नहीं कब जाऊंगी देखेंगे मॉम हे चैम्प रेडी फॉर स्विट्जरलैंड नो पापा नो स्विट्जरलैंड तो कहाँ दादी के गाँव थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी पार्ले जी जीनियस तो तेरे टैंके चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है। Jar, they posted a half-century partnership. Jar, the left-hander, 34 off 21. Brisk innings. And yeah, Maldives did a really good job with the ball early on, albeit against the back end. But look at Badu, 3 for 17 in 4. Stark contrast to the economy rate of the rest of the bowlers, but that is a really good return. Under pressure, and he came and bowled at the death as well. Yeah, bowled the last over. Everyone else in double figures, bar Nasir, who's gone at 7, but that is a stellar performance. Economy of just over 4. नाइनटीन्थ एशियन गेम्स 2022 को स्पॉन्सर कैंटारो जो देता है सबसे शुद्ध पानी, पार्ले जी माने जीनियस, अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। वेलकम बैक वंस अगेन एशियन गेम्स 2023। और ये जो मुकाबला भी हमने देखा, नेपाल बनाम मालदीव, क्या कमाल करा। 20 ओवर में 212 रन जड़े। एक समय ऐसा लग रहा था कि 150 के आसपास का ये स्कोर रहेगा। 70 पे जब आप 4 विकेट खो देते हैं तो फिर कुछ रहता है, लेकिन इस खेल की यही तो खूबसूरती है कि इसका नेचर थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अप एंड डाउन चलते रहते हैं और इसी खूबसूरती का नाम क्रिकेट है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर खास कवरेज। मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं मनीष कुमार जी, खेल विशेषज्ञ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मुकाबला था 20 ओवर में 212 रन अभी हम देख रहे हैं। एक समय लग रहा था कि 160-70 भी नहीं बनेंगे। 67 पे जब आप 4 विकेट खो देते हैं तो मन में आपको शोभा आती है, लेकिन क्या कमाल का है इसको। एब्सोल्युटली, जिस तरह से एक बार स्टेज पे दे कुडंट रियली गेट ए फ्लाइंग स्टार्ट नेपाल, लेकिन 10th ओवर के बाद जिस तरह से वो कम बैक कर रहे थे, 12th ओवर से लेकर लास्ट तक आखिरी तक, हम थे कि 180 से ज़्यादा नहीं होगा, बट लुक एट द फैबुलस वे दे एंडेड इन 213 रन्स। ग्रेट। जो नेपाल से उम्मीद की गई थी, आई थिंक वो उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया। एब्सोल्युटली। अगर आप स्कोर कार्ड पर लेंगे तो 2 स्कोर कार्ड ऐसे हैं, 2 बैटर्स जिन्होंने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया मिडिल इनिंग साइड।
जी, अगर आप देखेंगे सारे जो बल्क ऑफ द रन है ये दो मिडिल में ने 47 बॉल्स में बनाया ये पूरे इनिंग्स को लेके। एब्सोल्युटली। गेंदबाजी की जहां तक बात, एक बार गेंदबाजी विश्लेषण की तरह भी चल, नेपाल बल्लेबाजों को तंग किया था मालदीव के गेंदबाजों ने, स्पेशली जो 7-8 ओवर रहे हैं लैक ऑफ पेस के साथ गए थे। एक कोई प्लान दिख रहा था कि आप ज़्यादा उनको गति देंगे नहीं। एनआई नासिर ने शुरुआत करी थी, 3 ओवर उन्होंने डाले थे, एक सफलता उनके नाम। इन्होंने रेट भी T20 के हिसाब से 7.67, उन्होंने भी 3 डाली, 35 रन दिए, सफलता उनको मिली नहीं। ये मुबीन साहब थोड़े से महंगे साबित हुए, 42 रन जरूर गए, एक कामयाबी उनके हाथ लगे। पिकअप तो बोला इज एंड उन्होंने 7 रन देकर 3 सफलताएं अपने नाम करी, 4.25 का रेट। तो अगर दूसरे team is difficult to go with a contentment only strategy. एब्सोल्युटली। और नेपाल का दबदबा कायम रहा है, बहुत कमाल की क्रिकेट उन्होंने खेली है। इस पूल में एक मुकाबला ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, सो एज मालदीव उन्होंने भी एक मुकाबला जीता है। और यहाँ से जो टीम जाएगी तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगी। मेडल टैली की तरफ एक बार चलते हैं। भारत की स्थिति इस समय क्या है? दिन 8वां है आज एक्शन के हिसाब से, और भारत किस पायदान पर भी हम देखेंगे। मेडल टैली की तरफ चलते हैं, ये लिए बिल्कुल आपके सामने, और ये बढ़ने की संभावना भी है। 10 गोल्ड इस समय है, 14 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज और 38 कुल मिलाकर टोटल, और रैंक नंबर 4। अभी भी हम यहीं पर ही हैं, चूंकि आज काफ़ी ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स थे जहां पर सेमीफाइनल से फाइनल में एथलीट्स ने जगह बनाई है। मनीष जी, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है, आप CEO रहे हैं एथलेटिक्स फेडरेशन के, तो एथलेटिक्स से आपको
इवेंट्स आज आने वाले मिक्स डबल्स में आपको ग्रुप स्टेज में अभय सिंह और कंप्लीट करते नजर आएंगे। एक राउंड 1 सौरभ घोषाल वहां पर होंगे और महेश मांगोकर और ऑफ कोर्स यहां पर प्रभावित किया था कल जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो कुल मिलाकर बड़ा कमाल का ये दिन रहने वाला है। आप 19th Asian Games 2022 को स्पॉन्सर्ड बाय कैंटारो जो देता है सबसे शुद्ध पानी, पार्ले जी, जीनियस, अमूल, ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। Rotated their bowling best they could because it was a pretty quick innings in the end, and we'll see just what the Maldives are made of here. Ismail Ali about to piece the first ball, got himself 9 runs against Mongolia. That's the only wicket to go. They won, of course, by 9 wickets, took 6.4 overs for 62 for 1, so they can go at a lick if they want to, but it's a different class of bowling here. That's a nice shot. Looks in good touch. He played that well because that bounced. Nippy as well. On his toes, played it. Yeah, the bowling is, they have a lot of variety, don't they, Nepal? Not just spin. Leg. Yeah. Are you staying over or round Sampal? Over only. Winner progresses through to the quarter-finals. So not without a bit of nerves for both sides here. Oh, bowled him. First ball. Backed away from it and paid the price. Well, amazing. And that Rafiq had such a good... Hello. Good evening, ma'am. Hello. Welcome, sir. ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। क्यों उतनी टैंके चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। इस मिट्टी पे घर वापस अब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Quick fire 24 against Mongolia. And a very decent strike rate as well. But, very brief visit to the crease. Nepali contingent down in front of us. There's some more way to the right. Bowling, they're yelling out. I'm sure the captain's saying the same thing as well. Yeah, just
quietly impressed with the carry that Cammy's getting here, as the ball's comfortably going through to the keeper. He's catching it around about waist high. It's not the fastest wicket either, is it? No. Right behind it, even more so in the follow through. Well, that's what they're going to have to do, and of course an early wicket, that early. It's not just the fact you're one down, it's the fact that you're having to rebuild in the power play. Yeah, and the problem is here is it's not a, I don't mean to be sarcastic at all, it's not a test match, it's not about survival. You know, if you don't win, you're gone. You can pack your bags and go home. So you've got to try and get the runs. Be positive. Get on top of the bowling. Well, a flick and a miss. Again, footwork is a little bit absent here from the Maldives. They have survived the over, but with... बैग किसका है? मेरा। No fruit on plate. नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। कैंट से पानी होता है 100%। Just making sure his running is right. Ismail Ali. Well, he played the first ball with some comfort. He overwent downhill from there. Yeah, and he did play it well. Here we go. Just a little bit quick onto the hands there. Good pace from Joe. I think the ball just stops again in the pitch. And he right on the knuckles. We were talking earlier in the competition about how gloves have come on. They really, that would have been a finger breaker, a bone breaker, wouldn't it? Yeah, back in the day. It's just about this is we're not seeing because she's just shown me his little finger, which is it meanders to the point. How do you manage that one then, HT? No, well, again, I mean, you know, gloves are built beautifully nowadays to protect the fingers, but it's still a ball that weighs 5.5 ounces and it's pretty hard. And so sometimes if it clips the glove in a particular area, it can still do some damage. So yeah, I've got a nasty little finger on my right hand, which got squeezed against a handle, and the actual knuckle crushed. Oh. Looking to flick it. Fine. It is a wide. Precious run. I mean, actually, if wicket keepers, I mean, just to give you a bit of insight into wicket keepers, I'm thankful I never did that in my career, but if you had to do an x-ray of a wicket keeper's hands, I reckon that there are little fractures all over, because yes, he's got gloves on, but again, the protection that it gives, if you catch it just a little bit wrong, it is very painful. You always see them flinching every now and again. They get one in the fingers. Gone are the days when you put a good steak in the glove. Oh, lovely. Lifted over that slip cordon. And they have got two in for the edge. Yeah, you see those keepers, you talk about a steak, but keepers before play, they're always sitting by themselves with plaster and they're just strapping their fingers, trying to give extra protection to the knuckles. Next time. It's a good length, isn't it? Pegging away.
little different to a soccer goalkeeper, though, isn't it? Because when you're growing up, you never want to be a goalkeeper because you might not see the ball the whole game. Whereas a cricket keeper, I can remember growing up, everyone wants to be the keeper because you're in the game the whole time. I know. I was a keeper. Sorry about that. And left back. On the pavilion, or in the changing rooms. Got a thick outside edge from the ground. That ready. That rate, 11.5 to the over. Just dropping short, never a danger of Bertel snaffling a catch. What is he? Not quite gully. Perhaps is he gully? Very wide. Perhaps a fourth slip. Moving across a little bit now. He got a first slip in as well. 20 yards back. A little fuller this time. Perhaps could have a bit more with it, but it goes past the bat. Oh. चलो 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 take a break चलो वहाँ हर bite में real milk है जहाँ चलो 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 let's all go for an amul ice cream चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है दिल को जो बहलाना है let's all go for an amul ice cream chocolate rajbol dry fruits mango go 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 let's all go for an amul ice cream real milk real ice cream केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। That's the finest of edges. Just the one. I like Ismail Ali. He looks like he's got a bit of time to play his shots. Yeah, and he gets into line nicely, doesn't he? You're right, yeah. There are some Nepali flags being waved around here. Of course, not a traditional, more of a pennant. Not sure it's the only one that's that, that shape. It's a pub quiz question, isn't it? That's the wide ball. Which is the pub quiz question? Well, it could be which is the only nation flag that is shaped like a pennant. Okay. The Swiss flag is square, that much I can tell you. I'll Google it later on. I'll get back to you on that one. But it's certainly a very distinctive flag. Thought about just trying to guide it through slip and gully. Thought better of it at the last moment, but that's what 9 balls still to get off the mark. Be a good catch if it goes to slip. Because he's got a little bit of heat about him. Can he? Reed just slipped. He's made a bit of a mark, short of a length for a left-hander. I'll thank him for that. As he slipped and looked to come back again. Direct hit would have been easy, tight. It would have been very tight. I think he would have been gone. Just stretching a little bit. Just a little tweak as he tried to turn quickly. Oh! Well, he's certainly got his tail up, hasn't he? Simple Kami. Got the wicket, just a couple of runs. Always good. Be early in your spell. Clatter the wickets.
for play, but there's a man there. It's Kushal Mala lurking in the covers. The record breaker, the history man. Didn't go badly today either, did he? No. Crowd absolutely loved the sixes that started to rain down. One of them went onto the road next door, narrowly missing a family, just walking to the cricket. Ball goes flying past. Dug out nicely. Well, 3 overs gone, 5 for 1. Yeah, the rate over 12 now. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नेपाल और मालदीव की टीमों के बीच 19वें एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धाओं के तहत मुकाबला जारी है। टॉस जीता नेपाल ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताबड़तोड़ बैटिंग हुई। 20 ओवर में 7 विकेट पर 212 रन बनाए, यानी 213 रन का लक्ष्य है मालदीव के समक्ष। धीमी शुरुआत, खराब शुरुआत भी, 1 विकेट भी गंवा चुकी है मालदीव की टीम। नेपाल की ओर से लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैं हूं शिवेंद्र चतुर्वेदी, मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। इस प्रसारण में आपके साथ एक स्लिप के साथ गेंदबाजी, मिडिल और लेग स्टंप पर घूम करके स्ट्रोक खेलने की कोशिश, असफल होते हुए इस्माइल। गेंदबाजी में भी उन्होंने हाथ दिखाए थे। कुल मिलाकर के 8 बॉलर्स को आजमाया गया था मालदीव की टीम जब बॉलिंग कर रही थी। 30 गज के घेरे के अंदर 3 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड में। एक थर्ड मैन बाउंड्री पर भी तैनात किया हुआ है चित्ररक्षक को। मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। हल्की सी फंबलिंग, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं। सिर्फ 1 रन के लिए खिलाड़ियों ने छोर बदला। तो बहुत धीमी रफ्तार से स्कोरिंग की जा रही है मालदीव की टीम के द्वारा। अविनाश नया ओवर लेकर के आए हैं नेपाल की ओर से। बढ़िया गेंदबाजी, रफ्तार और दिशा का सही संतुलन। बढ़िया स्ट्रोक, कवर्स की दिशा में कोई फील्डर नहीं है। कारपेट के सारे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आकर्षक स्ट्रोक काफी लंबे अंतराल के बाद मालदीव की ओर से। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला गया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रूम मिला और 4 रन जुटाए अपनी टीम के लिए। चौथा ओवर चल रहा है और स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फरीद 14 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं अली, 7 गेंदों में 3 रन बनाए हैं उन्होंने। इस्माइल अली गेंदबाजी का दायित्व संभाला है अविनाश ने नेपाल की ओर से। हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव, गेंद सीधे मिड ऑन की दिशा में पहुंची थी। कैच ड्रॉप हुआ है। सिटर था ये, संदीप थे वहां पर और ऐसे कैचेस को लेने की उम्मीद की जाती है कॉम्पिटिटिव मुकाबलों में। काफी निराश होंगे अविनाश। ये बहुत ही आसान मौका था, रेगुलेशन कैच, लेकिन ड्रॉप हुआ। और संदीप लामिछाने तो आईपीएल में भी खेलते हैं, काफी अनुभव है इनके पास। काफी डिसअपॉइंटेड भी होंगे इस गलती से। कारपेट के सहारे ड्राइव, 4 ओवर के बाद स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर मालदीव। बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट।
नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। No fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। 4 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरीके से शुरुआत हुई, पहले ही ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे ओपनर, और उसके बाद अब थोड़ा सा जमकर खेलते हुए 10 रन बने हैं। दूसरे विकेट की साझेदारी में लक्ष्य बहुत बड़ा है, 212 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने, और इस मैच को जीतने के लिए 213 रन चाहिए। और जिस तरह से नेपाल की गेंदबाजी है, काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है कि गुलशन झा जिस तरीके से गेंदें डालते हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और अगर आप बात करें सोमपाल कामी की, गुलशन झा की, तो काफी तेज गति की गेंदें डाल रहे हैं। शुरुआत में तो मालदीव के बैटर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद बमुश्किल से रोक पा रहे थे विकेटों में जाती हुई। नेपाल ने जो 212 रन बनाए हैं, उसमें कप्तान रोहित पौडेल ने अर्धशतक बनाया, 52 रन बनाए। इसके अलावा गुलशन झा ने 35 और कुशल भुरतेल ने भी 35 रन बनाए। बीच में दबाव था, 67 पे 4 थे, लेकिन उसके बाद तेज गति से रन बने नेपाल के, और इसको खेला जरूर अंदरूनी किनारा लगा, जैसे लेमन कट कहा जाता है। 4 रन तो नहीं मिलेंगे क्योंकि फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ा फरीद शियूस को। और दूसरी तरफ जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं इस्माइल अली, दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और बैटिंग ऑलराउंडर हैं। आज मालदीव की तरफ से नजवान इस्माइल ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए, सबसे सफल गेंदबाज रहे। बाकी सभी गेंदबाजों को, जो 8 गेंदबाज आजमाए, उसमें 5 गेंदबाजों को 4 गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला। गुलशन की गेंद, इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, स्टीयर करना चाहते थे तिरछे बल्ले पर थर्ड मैन की तरफ, लेकिन पॉइंट की दिशा पर गई। 3 फील्डर वहां पर मौजूद थे, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया गया। अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की, तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19वीं एशियाई खेलों में 27 तारीख से हुई, जहां नेपाल ने मंगोलिया को 273 रनों के स्कोर से हराया। 314 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जिसमें दीपेंद्र सिंह एरी ने 10 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर नया कीर्तिमान बनाया। इसी बीच गुलशन की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी थोड़ी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसको वाइड दिया जाए। खेलने की कोशिश जरूर की इस्माइल अली ने, अपना घुटना टिकाकर कट करना चाहते थे, बल्ले पर संपर्क नहीं हुआ। पहला मैच नेपाल ने मंगोलिया को 273 रन से हराया। उसके बाद कंबोडिया और जापान के मुकाबले में जापान 3 विकेट से जीता। अगला मुकाबला 28 तारीख को था, जिसमें मलेशिया और सिंगापुर आमने सामने थे। मलेशिया ने 73 रन से उस मुकाबले को जीता। उसी दिन दूसरा मुकाबला मालदीव और मंगोलिया के बीच में था। मालदीव ने 9 विकेट से उस मुकाबले को जीता था। और अब मालदीव, आखिरी गेंद, कोई रन नहीं। 5 ओवर की समाप्ति, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। No fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी।
Boundary 4 for Maldives. 马尔代夫边界4分。 इसको कमेंटेटर कर्स भी कहते हैं, विकेट भी गिरता है, चौका छक्का भी लगता है। और बढ़िया स्ट्रोक खेला, एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर स्लॉट में डिस्पैच। गेंदबाज के सिर के ऊपर से जब स्ट्रोक लगाया जाता है बल्लेबाज के द्वारा तो वो काफी दर्शनीय होता है, लेकिन अगली गेंद पर मिसक्यूट शॉट है, 2 फील्डर्स थे। आखिर में फैसला हुआ कि हम कैच लेंगे और दूसरा विकेट गिरता हुआ मालदीव का। Number 7 out. Caught. 7号击球员被接杀出局。 और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो काफी निराश बल्लेबाज मिसक्यूट शॉट की बदौलत आउट होकर पवेलियन वापस। बाड्यू आए हैं इस समय, 2 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी हैं 30 गज के घेरे के अंदर, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी। यॉर्क करने की कोशिश, गेंद क्या पैड से टकराई और आउट करार दिए गए हैं। लगातार दूसरा विकेट मालदीव का। पता है, मम्मी आ रही है और दीदी भी महीने भर रहेगी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नए बल्लेबाज थोलाल और इस समय हैट्रिक का अवसर नेपाल के गेंदबाजों के लिए। इंटरेस्टिंग स्टांस, क्रीज से काफी आगे खड़े होते हैं। मिडिल लो लेग स्टंप पर रक्षात्मक स्ट्रोक, शॉर्ट मिड विकेट पर उसे फील्ड किया गया। रन बनने की कोई संभावना नहीं। मालदीव की बल्लेबाजी चरमराती हुई। 3 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। इस्माइल अली 11 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अविनाश ने इस ओवर में 2 विकेट लिए। एक बार फिर से यॉर्कर, 2 क्रशर यॉर्कर आउट करार दिए गए हैं। तो ये चौथा विकेट और ओवर की समाप्ति। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं भी। गोवा फ्रेंड्स के साथ? स्वीट। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। हाँ बोल दीजिए। सॉल्टी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ, पर आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। हर किसी ने तुझ में अपना यार है पाया। द टेस्ट
Amul Light. The only thing it's rich in is taste. केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो पावर प्ले पहला समाप्त हुआ। यह दूसरे पावर प्ले का इशारा अंपायर के द्वारा। तो अभी तक कुल 16 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और नया ओवर शुरू किया गया गुलशन झा के द्वारा। पिछले ओवर में अविनाश बोहारा ने 3 विकेट हासिल किए। एक छोर संभाले हुए इस्माइल अली, लेकिन लगातार, और ये भी क्लीन बोल्ड हुए हैं। सैंडविच की बात हो या स्मूदी का सीन, एवरी स्नैक नाउ इज फुल ऑफ प्रोटीन। रोटी पे स्प्रेड करो या क्लब इट विद ब्रेड, अमूल पीनट स्प्रेड, प्रोटीन गेट्स पीनटिया। ले लो चाहे स्कूप या मंचीज, करो डिप, दिस प्रोटीन स्प्रेड्स लाइक लव ऑन एवरी लिप। अमूल पीनट स्प्रेड, प्रोटीन गेट्स पीनटिया। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, वेलकम सर। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा। उसके दबाव में आधी टीम आउट हो चुकी है। और इस तरीके से नए बैट्समैन आते इस गेंद को दिखा दिया सीमा रेखा से बाहर का रास्ता। Boundary 4 for Maldives. मुवियत नए बैट्समैन आए हैं, मुवियत घानी। लेकिन जिस तरीके से एक ही ओवर में अविनाश बोहारा ने 3 विकेट ली, उसके बाद गुलशन झा ने 1 विकेट हासिल किया। मालदीव की टीम जिन्होंने 9 विकेट से हराया था मंगोलिया को, आज यहां पर लगभग आत्मसमर्पण करती हुई यॉर्कर लेंथ की गेंदों को नहीं खेल पा रहे और एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। गुलशन की गेंद इस बार बल्ले का मुंह खोला, धकेला जरूर था, लेकिन पॉइंट के फील्डर को बीट नहीं कर सके। बात कर रहे हैं हम नेपाल और मालदीव की। आज नेपाल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 67 पर 4 विकेट हो गए थे। उसके बाद तेज गति से रन बने। कप्तान रोहित पौडेल ने अर्धशतक बनाया 52 रन। इसके अलावा कुशल भुरतेल और गुलशन झा ने 35-35 रन का योगदान दिया। राशिद, जिन्हें भी अपना खाता खोलना है। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल कर गई। गुलशन की बेहतरीन गेंद अंदर की तरफ आई। थोड़ा सा भाग्यशाली रहे, और अगर अंदर की तरफ आती तो ऑफ स्टंप ले उड़ती। बहुत मुश्किल हो सकती है। हसन राशिद और घानी आपकी स्क्रीन के ऊपर। 20 पर 5 विकेट हो चुके हैं। 7वां ओवर चलता हुआ। पावर प्ले में ही 4 विकेट जा चुके थे। गुलशन झा दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से बीट किया। इस बार ऊंची थी गेंद, टप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से निकल कर गई। एक सदैव बैट्समैन की तरह बाद में शैडो बैटिंग करके देख रहे हैं कि कहां गलती हो रही है। लेकिन भाग्यशाली रहे कि दोनों ही बार विकेटों के नजदीक से गेंद पहुंची विकेट कीपर आसिफ शेख के पास। हम बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट की, और इसके अलावा हांगकांग और जो कंबोडिया का मुकाबला था उसमें हांगकांग ने 9 विकेट से जीत हासिल की थी। 29 है आखिरी गेंद, और इस गेंद को खेल दिया। दौड़कर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिलने की संभावना कम है। 7 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत
एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। लगातार मुश्किलें पेश करते हुए नेपाल के गेंदबाज अविनाश इस समय नया ओवर लेकर के आए हैं। 8वां ओवर है, 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर। कोई स्लिप नहीं। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर बीट होते हुए इस बार सिंगल बाउंस पर पहुंची थी गेंद विकेट कीपर के पास, थोड़ी सी लो भी रही। मूवमेंट हवा में जनरेट करते हुए अविनाश बहुत निराश है कि इस गेंद पर उनको विकेट क्यों नहीं मिला। 2 डॉट डिलीवरीज, इस बार यॉर्कर लेंथ की, लेकिन मिडिल और लेग स्टंप पर वो मुश्किल तमाम उसे नेगोशिएट किया गया। मोवियत घानी और रशीद बल्लेबाजी का क्रम संभाले हुए। घानी आपके स्क्रीन पर, एक चौका लगाया है उन्होंने, स्ट्रेट ड्राइव किया है, हाफ वॉली पर लेकर फील्डर मौजूद है। गेंद की रफ्तार पहले ही कम हो गई थी, संदीप ने उसे फील्ड किया। फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास किया था अविनाश ने, ठीक से सफाई से रोक नहीं पाए, लेकिन रफ्तार को जरूर कम कर दिया था। 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन का लक्ष्य मालदीव के समक्ष। रक्षात्मक स्ट्रोक मिड ऑन की दिशा में, रनों के लिए नहीं। बहुत शांत क्रिकेट जिसमें गाहे बगाहे हलचल है तो विकेट्स के गिरने की वजह से। 2020 ओवर का जो कलेवर है, जो चरित्र है, उसके बिल्कुल विपरीत बल्लेबाजी द्वारा। अविनाश की गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड किया। 8 ओवर के समाप्त होने के बाद मालदीव 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ? जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Very, very good in the first game they had, and let's see what he can do. Couple of wickets in his 2 overs against Mongolia. This is a class act. Leggy, he's really, really good bowler. This is one player who's applied his trait against the best players in the world. So this could be a challenge. It will be a challenge. You know, Maldives, we must remind you that they only have a population of 500,000. They come from, you know, all over the islands, 187 inhabited islands. To get regular practice and opportunity to play on surfaces like this, they don't have a turf wicket in Mali. So yeah, it is very, very difficult. Nepal have 500 clubs. They have a very vibrant cricket setup. Thought about backing up and have to scurry. Now the overthrow. That's a little loose from Nepal. And Lamashan turns around and says, what were you thinking? There was no run. The man who was found in the
countryside of Nepal. As a 14-year-old, 17 he was at the IPL auction. He's played for 24 teams in his career already. And he's got the full bag of tricks. Look at the leg spinner for the wrong run. It wasn't close, was it, the swing? No, he bowls at a brisk pace as well. It's moving. Yeah, well, he's the one who was bowling when the coach was going on his way to a wedding and saw him bowling in the field in a little pickup game and said, we need him. Why are you late to the wedding? Ah, well, I had to spend half an hour watching this lad. The back of the hand. Just getting on a little bit. Asking, no. He does absolutely get through the over quickly. Bit high, going down leg. But as you say, I'd love to have a speed gun on his bowling. It's not slow. Oh, that is out. That is out. And Rashid will have to go. Another. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Number 17. Then umpire says you're on your way. Well, we're in the 10th over now. 23 for 6. It's just a question of whether they can hang on for a bit longer. Rassam Rashid comes in to replace Hassan Rashid. Again, someone who hasn't been at the crease with bat in hand anyway. Spin from the other end now as well. Good work in the field from Lamishan. The keeper was alert as well. Mala is on, the man who you normally think of with bat in hand. Oh, and he's been given a bit of his own treatment. 6. That was a good shot. Yeah. Beautifully hit by Ghani. He picked the length very well, hit down over the board, clean strike. Little defiance that prompts an extra man on the leg side boundary. Well hit. That's a nice little glance. I think if the non-striker Hassan Rashid had really wanted it, they might have been able to get there. Sort of run that Nepal were taking. Yeah, they wouldn't have. The left. It was on the left-hander's right side, and there would have been a trouble. That risky run. Just past slip. Despairing dive. They'll go through for 2. Good work in the deep. They're very sharp in the field, Nepal. And that aberration by, let me show him, who dropped that catch. Was just that rare thing. We've seen a few drop catches in the game. Ghani into 16, run a ball. 1-6, 1-4. Bit of backs to the wall defending and defiance. He's doing his job. Doing what he can. Of course, only 3 batters
got to go against Mongolia. Ismail Ali, Nazim Rafiq, and Hassan Rashid, who's just exited. और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फौग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन। खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। It's been a sorry tale for the Maldives. Halfway through their innings, 32 for 6. I think from a in any other circumstances, Nepal, if it was a one-off sort of game, Nepal might have won the toss and put the Maldives into bat. But I think what we saw during the women's competition, Gerald, is that those that didn't really play struggled to quickly adjust to the conditions and were almost, well, were sent packing after just one game. So I feel here that Nepal have looked at this and said, look, we should win this game. Everything is stacked in our favour. And we maybe need to give everyone a go here, get a feel of the conditions from a batting perspective, so that we give ourselves the best possible chance to perform in that quarter-final when we come across one of the really big nations. Who wouldn't have played on this surface already. So, yeah, they giving themselves as best possible preparation for that. Wherever it is they might play. And they'll fancy themselves against any of them, for sure. Well, certainly India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka will be looking at that draw closely, saying Afghanistan and Nepal we want to try and avoid, because they're more than capable of creating an upset. Got away on the leg side. I mean, if you think about it, you know, Afghanistan, they qualified straight away for this World Cup, this 50-over World Cup that's happening in India in the next couple of days, whereas the likes of Sri Lanka had to go through a qualifying process. So it shows you the type of side that they have. Their depth will be tested a little, bringing obviously the side they bring here. They would have lost a number of players to that side going to the 50-over World Cup. Yes, there's some who specialise in this only, but that'll be the one test for them. And on the pool, this is their top side. A wonderful bowler, isn't he? He's got all the tricks. Yeah. A scamper, scurry this first. The busy-looking player is Rassam Rashid. Picked up his first run, so he's off the dreaded duck. Well, the one thing that
what these leagues around the world have done is they've created some real household names. I mean, you know, would we have heard of Sandeep Lamachani? Would we have heard of Rashid Khan? You know, these guys are now sought after cricketers all around the world. You know, England in the 100 over there, the Big Bash in Australia, think of the SAT-20 in South Africa. These types of bowlers like Sandeep here are just, people pay a fortune to have them in their teams. And you can see why he's a real class act, as you pointed out. He's got the full... No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी. क्यों है? उतनी टैंक के चल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना. ये भी सही है. और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है. केंट से पानी होता है 100% प्योर. केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है. The cover field of Mala. You know, I think obviously the pinnacle is the Indian Premier League. Everyone wants to go and play there, but then you have some slightly underneath there, the Bangladesh Premier League, the Lankan Premier League in Sri Lanka. Think of Canada has a T20 league. America has one now as well. So and they all need players. What I can tell you is that someone is always watching. Yeah. You know, these leagues and teams, it's serious business now. So people have scouts, and there's absolutely no doubt that people are watching here just to try and see if they can find that diamond. Exactly, the gem. There's someone there that'll write his name in lights in the next week. Absolutely, and particularly as we get, as we're saying, to the knockout rounds, the quarterfinals, and against the big guns. A star turn there could change your career. Mala. And swept neatly by Rashid for a single. Well, this also helps the fact that Mala, who's the big hitting left-hander, can bowl some left-arm spin. I mean, if you're a multi-dimensional player as well, you become quite attractive. Gulshan running in from the one end and batting as well. He tall, beautiful looking left-hander. So there's talent here for sure. Looking for, trying to exploit their leg side stumping there. Perhaps didn't work in their favour. I think I'm a bit of a good luck charm for the Maldives. Whenever I'm on air, no wickets have gone down. You and Richard took all 6. We'll loop here, just a hint to turn and bounce. And that's Rashid pushes the last ball of the over back. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे. जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी. पार्ले जी माने जीनियस. केंट से पानी होता है 100% प्योर. केंट आरओ. जीत का लक्ष्य 213 है. 12 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर मालदीव. और देखिए जिस तरीके से गेंदें घूम रही हैं, चाहे वो कुशल मल्ला हो या संदीप लामिछाने, बहुत मुश्किल हो रहे हैं. इस गेंद को उठा दिया फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर. 6 रन के लिए बहुत शानदार मुआविजा घानी का ये सिक्सर, जो कि स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया. काफी देर के बाद एक अच्छा शॉट देखने को मिला. 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर. आज मालदीव के विकेट बहुत जल्दी गिरे. पहला 1 पर, दूसरा 16 पर, तीसरा 16 पर.
चौथा 16 पर, पांचवा 16 पर, यानी कि लगातार 2 ओवर में ये 4 विकेट गए। उसके बाद 24 पर छठा विकेट और अब 21 रन की साझेदारी हो चुकी है घानी और राशिद के बीच में। अगर बात की जाए नेपाल ने जो 212 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, उनका विकेट पतन 20 पर पहला, 54 पर दूसरा, 58 पर तीसरा, 67 पर चौथा, 137 पर पांचवा, 197 पर छठा और 209 पर सातवां विकेट गिरा था। यहां भी रन जरूर मिलेंगे। थर्ड मैन की तरफ गए ये फील्डर, उसके पीछे जा रहे हैं कुशल मल्ला, लेकिन कोई कुशलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 प्रहार और इस चौके की मदद से स्कोर हुआ 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब दबाव को कम करने की कोशिश घानी के द्वारा। इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं। बहुत समझबूझ के साथ उन्होंने इस गेंद को खेला था। अगली गेंद संदीप लामिछाने की, लेग स्पिनर है, आईपीएल में भी खेलते हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं नेपाल की टीम में। अभी तक 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में और यहां पर ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं। घानी ने 27 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं, राशिद ने 7 गेंदों पर 2 रन बनाए हैं। 49 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 164 रन चाहिए जीत के लिए, सिर्फ 43 गेंदें बाकी हैं। जीत पाना काफी मुश्किल है, दबाव में है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हुए पूरे 20 ओवर खेलने का। संदीप जोरा ने इस गेंद को फील्ड किया। ओवर समाप्त हुआ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। मालदीव की टीम 50 रन बनाने में कामयाब। 60% टीम पेविलियन में। बहुत ही खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर और बाहर ड्रिफ्ट करते हुए। 13 ओवर के समाप्त होने के बाद 51 6 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 213 रन का। एकमात्र प्रतिरोध घानी के द्वारा 28 गेंदों में 31 रन। इस बार ऑफ स्टंप की दिशा में पॉइंट की ओर से खेला है। स्वीपर कवर से दौड़ करके आए हैं फील्डर। अच्छा थ्रो विकेट कीपर के ग्लव्स में। 1 रन का इजाफा। रशीद ने 7 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। लगातार नियमित अंतराल पर विकेट्स गिरे हैं। एक समय तो ऐसा लगा था कि मालदीव की टीम 50 रन भी बना पाएगी अथवा नहीं, क्योंकि एक ही ओवर में अविनाश ने 3 विकेट हासिल किए थे। हैट्रिक से चूके थे वो। उसके बाद पारी को संभालने का प्रयास हुआ है इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया 1 रन के लिए। पारी का 14वां ओवर प्रगति पर है। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। अच्छा बैकअप। विकेट कीपर अपने स्थान से दौड़ करके गए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उन्होंने थ्रो किया था। टारगेट से भटके, लेकिन गनीमत यह है कि बैकअप था, अन्यथा ओवर थ्रो के रूप में रन मिल सकते थे घानी और रशीद को। बढ़िया गेंदबाजी, लगातार दूसरी बार रॉन्ग वन और विकेट कीपर भी चूके, बल्लेबाज भी चूके। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बाई के रूप में। सीमान अतिरिक्त की संख्या में इजाफा, 4 रनों की बढ़ोतरी। मालदीव की टीम टारगेट यही कि रन कैसे भी आए, हालांकि जो विजय का लक्ष्य है वो तो बहुत ही दूर है। बिल्कुल भी संभल नहीं पाए, न बल्लेबाज
ना ही विकेट कीपर। गेंदबाज जाहिर सी बात है थोड़े निराश नजर आए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है नेपाल की ओर से। बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद टकराई थी, लेकिन गनीमत यह है कि ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं किया, अन्यथा बॉलर तैयार थे। 14 ओवर के बाद मालदीव 58 6 विकेट के नुकसान पर। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The new bowler, number 45. देखिए विहंगम दृश्य इस मैदान का। और अब दीपेंद्र सिंह ऐरी को लगाया गया है, जिन्होंने कि 10 गेंदों पर 52 रन बनाए, अर्धशतक का नया कीर्तिमान बनाया था मंगोलिया के खिलाफ। पहली गेंद को घुमा दिया इस बार घानी ने। गेंद को फील्ड किया गया वहां पर अविनाश बोहारा के द्वारा, लेकिन दौड़कर 1 रन पूरा किया। लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन पहला लक्ष्य होना चाहिए कि 20 ओवर आप पूरे खेलें। 14 ओवर हो चुके हैं। 59 6 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद को भी खेला जरूर, थोड़ी मिस फील्ड हुई कुशल मल्ला के द्वारा, दौड़कर छोर बदला। लगातार दबाव बनाने की कोशिश। 24 पर 6 विकेट गिर चुके थे और यहां पर अब 36 रन बन चुके हैं 7वें विकेट के लिए। एरी अपनी गेंद को बिल्कुल छिपा कर, जैसे वेस्टइंडीज की स्पिनर हैं वो गेंद को छिपा के रखते हैं। सुनील नारायण ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग भी करते हैं, छक्के भी लगाते हैं। हवा में थी एक गेंद, लेकिन बल्लेबाज की तरफ। हालांकि एरी ने कोशिश जरूर की, दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस बीच राशिद रसम बहुत धीमी गति से गेंदबाजी करी। ये देखिए किस तरीके से गेंद घूमती हुई और हैंडल के पास टकराई थी, थोड़ी हवा में थी थोड़ी देर तक। अगली गेंद को तेजी के साथ फिर दौड़ पड़े रन लेने के लिए। इस बार क्या यहां पर रन आउट के चांस बनते हैं, लेकिन नहीं। पहला टारगेट किया, आप पूरे 20 ओवर खेले और ये काफी हलचल वाला ओवर। हालांकि 1-1 रन बने हैं, स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा है। 40 रन के आसपास साझेदारी होने वाली 7वें विकेट के लिए और इस पे कोई रन नहीं मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हमका भी प्रमोशन चाहिए। दे दीजिए बॉस, इसके तो छोटे छोटे EMIs है। और नहीं मिला तो ये चिन्नी चोर अपना स्टार्टअप गैंग चालू कर देगा। कंपटीशन आज से तुम गैंग के AVP स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर विकेट लेने में कामयाबी। 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक झटका लगता हुआ। हर स्वाद में बसा, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, वेलकम सर। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
तो जो साझेदारी बढ़ रही थी आगे, स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश कर रही थी मालदीव की टीम को, उसको झटका लगा और अब सादिन हुसैन का आगमन। इस बार विकेट कीपर मुस्तैद थे। बढ़िया विकेट हासिल किया बुर्तेल ने अपने नए ओवर की पहली ही गेंद पर। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, डीप में है। जब तक दौड़ करके आए 1 रन। 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और 7वें विकेट के लिए कुछ रन जोड़े गए। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और लॉन्ग लेग। अगर कोई लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला जाता है तो एक स्लिप के साथ गेंदबाजी, कमजोर शॉट, आसानी के साथ 1 रन। कुशल मल्ला ने गेंद को फील्ड किया। लक्ष्य 213 रन का, स्कोर 65 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार थोड़ी सी यस नो की स्थिति, लेकिन अंततः रन लिया गया। स्क्वायर लेग अंपायर के दाहिनी ओर गेंद पहुंची थी लुढ़कती हुई। शॉट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं, सिर्फ बैट्समैन ने अपने से दूर धकेला था। रशीद 15 गेंदों में 6 रन बनाकर नाबाद हैं। हुसैन अभी अभी आए हैं, 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं उन्होंने। ओवर की आखिरी गेंद, कट करने की कोशिश असफल हुए। 16 ओवर के बाद मालदीव 66 7 विकेट के नुकसान पर। भाई मेरा आयशा से ब्रेकअप हो गया है, अब कैसे जीऊंगा मैं? सॉरी ब्रो। वैसे रिया तेरा नंबर मांग रही थी। 98193333। अरे Be comforting. Be more milk. Amul. केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Round the wicket. Right arm. Beat करें। Yeah, he certainly went some against Mongolia. The question is, can he produce it against the big boys? Well, that will be the question. Faced 2 balls today. His first delivery went out the ground. He's got just the right balance on that. If he'd got a bit more of a decent connection, I think long arm would have swallowed that quite nicely. I do think there'll be some more attacking play against the sort of finger spin that Airy has, rather than the wrist spin of Buttal. That'll be a wide. That's horrible for the keeper, isn't it? Got something on it. And it's the arm that he's rubbing. Forearm on the left arm. That's very, very quick. Yeah. If he just gets a little bit of air on it, I wouldn't be surprised if Hussain tries to take him on. There you go. Just give it a little bit of flight. He's toying with him, isn't he? Spinners, you've got to have a bit of courage to loop it up, haven't you? Done it again! Phew, goodness me. No wonder he's smiling. Those last 2 balls were wonderful. 17 gone, 69 for 7. The 17th over concluded. 69 runs. So the top of middle stump.
ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरो प्योरिटी दिखा। Well, Rashid trying to make a bit of space, but Googly or the top spinner would do the job, wouldn't it? I just don't think they're equipped, these last few batters from the Maldives, to deal with the leg spin of Lamachan. It's too good, isn't he? It's coming. Too good to get the edge. The Googly is coming. It just depends how patient or impatient Sandeep is before he throws the googly in. Well, not yet. Here we go. This is your, yeah. 3 big spinning leg breaks. Now comes the googly. Pretty short. That's a wonderful skill. Oh! Straight on. And still missed. I think if that had landed Jason to the stumps, he'd be on his way. Yeah, ball one up the back of the hand there, not as much turn as the leg spinner. And again, the top spinner. That just creates more bounce. Well, he's showing all of it here, Sandeep Lamachan. Just hurries you as well, it spins on and... Yeah. Run into the block hole, and they'll take a run, which is going to infuriate the bowler. So, 18 gone. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। That one kept low. That one's going to go all the way to the boundary. And there was bat on it. Boundary 4 for Maldives. Well, there's 2 out there. I know what you're saying, HT, but the 2 out there batting we'll love to have just a few more balls. It will be the end of their tournament, of course. Oh, absolutely. It's been a wonderful experience for them. They have a win under their belt, so they'll be satisfied that they will end the group in 2nd place. Mongolia, obviously, in their first outing as an international team, will end in 3rd. Somehow that then did not hit the stumps. They're riding their luck a little bit. And I think both the Maldives and Mongolia would have looked at their group and seen Nepal in it and known that, look, they are out-and-out favourites to go through. He just stopped a little bit, and he stopped on the follow-through there. There he was interested for a moment. I think the next game this afternoon will be a good one. Yeah. I think Hong Kong, China, Japan. Little fish and a miss. Getting through the overs. It's cool. They're not sweating out there too much. It's the nicest temperature we've had. Oh, it might be coming. It just, I don't know what it is. It's almost as if it's around about 2:30, 3. You just get stifling heat here for about 2 hours, and then it goes again as the evening sets in. But it is very, very warm. Nice shot for none. Yes, I got the, what, I don't know what you call them, the ball gown gloves, the ones that go all the way. Ball gown gloves.
बैग किसका है? मेरा। नो फ्रूट ऑन प्लेट। नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। And that chaotic in from the Maldives' point of view, second over. I think he might look for some Yorkers as well. Right on the money, HD. And so was that ball as well. Wonderfully done. Hussein all ends up. Well, it's where he had his success in his second over, trapping a couple of the... हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। In the hitting zone, and he's fuller than that, and it's a full toss. Bahara gets it perfect. Yeah, you're going to have nerves of steel as a bowler to bowl that at the death of a tight innings. And there's another one. He has his 5 foot and he's on a hat-trick once again. Well, I didn't get round to telling you that Mohammed Moivan was the batter. सर, माल कहीं नहीं मिला। बाबे जी, आप इतने यंग इस जंग लगे बुड्ढे के साथ। क्या देखा आपने? ना शक्ल देखी ना अकल। नहीं पैसा। अरे कम से कम पैसा तो देख लेते। दिखाओ पैसे। लुट गया। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Those stumps again. Hat-trick ball. Oh, was not far away. Smile from Nasir. A big grin. Twice has been on a hat-trick. Well, as a batter, more often than not, more often, in fact, virtually every time, if you know where he's going to bowl, you're happy. And I'll tell you what, Nasir knows where he's going to bowl it. Big shout, really wants it and gets it. That's his 6th, and they're all done. बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। To put things right and to elevate
Nepal to a very, very big total. The Maldives, they try to hang around, but eventually they were bowled out in the final over. They've had a nice tournament. They will leave with a win under their belt, and with the recognition that there's lots of work to be done if you want to sit at the top table. And Nepal, well, they are very close to being at that top table, aren't they? They have played wonderful cricket here. We are fascinated to see how they'll do in the quarterfinals. Maldives, well, Ghani and Rashid, and to a lesser extent Farid, with the runs. 6 ducks, 3 of them golden ducks, and a couple of them second ball dismissals as well. There is work to be done as far as the batting goes. How about that? One man to talk about. Only 3.4 overs needed to take 6 wickets. Only conceded 11 runs, twice on a hat-trick. Avinash Bahara, the pick of the bunch by some distance. 7 bowlers used, so a nice run out for Nepal. Easy in the end. 138 runs is the margin of victory. Not quite as much as they managed against Mongolia, but still handsome. Just well, didn't go to run rate. But they will progress through Nepal, and it'll be absolutely fascinating to see how they go and who they are drawn against. That's not quite decided yet. एशियन गेम्स 2022 को स्पॉन्सर्ड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी, पार्ले जी माने जीनियस, अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर, टीम इंडिया, अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट, पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स एशियन गेम्स 2023 का। आज के दिन का हम मुकाबला देख रहे थे नेपाल बनाम मालदीव। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी और 212 रन का विशाल स्कोर उन्होंने अर्जित किया 20 ओवर की निर्धारित खेल में। उसका जवाब देने के लिए जब पहुंचे तो फिर ऐसा लग रहा था कि आप कुछ भी करके यूं वापस आ जाइए। खेल समाप्त हो गया। 74 पर ऑल आउट यहां पर किया नेपाल ने मालदीव के लिए, तो एक कंप्लीट डोमिनेशन देखने को मिला। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, मेरे साथ स्टूडियो में है मनीष जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। लेकिन स्वागत आपको यहाँ नजर नहीं आएगा क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट में कंप्लीट ओवर भी नहीं हुए, आप 74 पे ऑल आउट हो गए, जस्ट अंडर 100। कंप्लीटली वन साइडेड डोमिनेशन था नेपाल का। मैच के शुरुआत से लेके 10th ओवर से लेके फिर आखिरी तक हमने देखा कि नेपाल जो है एक लीग अबव रहता है मालदीव्स के कंपेयर में। बॉलिंग तो आपने देखा ही कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट से अपने 10th से लेके 20th ओवर तक जिस तरह से बैटिंग की थी नेपाल ने, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। और फिर बॉलिंग तो बैटिंग करते समय मालदीव्स जस्ट कुडंट टेक ऑफ। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया था 6-7 ओवर के बाद ही कि मालदीव्स जो इस मैच से रेकनिंग में नहीं है। एब्सोल्युटली। एक बार बैटिंग कार्ड पर हम नजर डालेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि बल्लेबाजी किस तरीके से रही, लेकिन बल्लेबाजी स्कोर कार्ड की जाने की तरफ, तो उससे पहले मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इतना विशाल जो स्कोर है, क्या वो उनके ऊपर ये दबाव था कि 200 प्लस का स्कोर है, ये पार्ट पाने में उनको बहुत जल्दी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी उस आवेग में, जल्दी विकेट्स का, या कोई और रीजन आप देखते हैं? एब्सोल्युटली। आई थिंक जब वो मानसिक दबाव तो पड़ता ही कि जब आप देखते हैं कि आपका ऑपोजिशन जो है वो भी थोड़ा फेवरेट है, प्री मैच फेवरेट था, वो 200 प्लस करता है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही है, और उस चीज़ के अंदर कंप्लीटली क्रम्बल कर गए वो प्रेशर में। एक बार नजर डालते हैं, देखिए मालदीव का बैटिंग कार्ड, आदि साहब आए थे ओपनिंग करने के लिए और एम रफीज उनके साथ थे, और पहली गेंद जो वो स्विंग होकर अंदर की तरफ गई, स्टंप पे टकराई और गिल्लियां बिखर गई। वहीं से लगा कि कोई पार्टनरशिप यहाँ जमने वाली नहीं। आप देख सकते हैं
टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। 1 2 3 4 5 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो खाता भी नहीं खोल पाए। एम.ए. घानी ने जरूर थोड़ा सा संघर्ष किया, 36 रन उन्होंने 34 से गेंदों से किए। बाकी एक टेलीफोन नंबर लग रहा है आपको, देख लीजिए। बिल्कुल 3 बैट्समैन सिर्फ डबल डिजिट में जा सके। घानी ने अच्छा इनिंग खेला, 36 रन ऑफ 34 बॉल्स, लेकिन बाकी बैट्समैन तो खेल ही नहीं पाए। जैसा आपने बोला कि खाता भी नहीं ओपन कर पाए और डबल डिजिट में पहुंचने की तो सवाल ही नहीं था। बिल्कुल एक बड़ा स्कोर तो खैर है ही, लेकिन कुछ और भी सवाल यहाँ पे हैं। जिस तरीके से इनएक्सपीरियंस साइड हमने देखी है, अनुभवहीनता देखने को मिली। पहले एक बार बॉलिंग कार्ड पर नजर डालते हैं। एस कामी जिन्होंने 1 विकेट झटका, 2 ओवर डाले और 2 ही रन उन्होंने मात्र दिए, कमाल की गेंदबाजी। लेकिन पिकअप द बॉलर ए बोरा 3.4 ओवर केवल 11 रन और 6 विकेट उन्होंने लिए। आपको याद आ रहे होंगे कुछ समय पहले ये मियां सिराज ने ऐसा कारनामा किया था श्रीलंका के विरुद्ध एशिया कप फाइनल में, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी। जी एब्सोल्युटली, आई थिंक बोहरा जो पूरे मैच में ही स्टूड आउट, ही वाज एन एक्सेप्शनल बॉलर, बड़े डिसिप्लिन के साथ बॉल किए, बहुत एग्रेसिव थे, कभी भी नेवर लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन एंड एज अ रिजल्ट इज वेरी क्लियर व्हाई ही बैक 6 विकेट्स। चलिए, अगर आपने मिस किया है कि इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ तो मैच समरी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इस T20 मुकाबले में एशियन गेम्स के क्या कहानी घटित हुई। नेपाल और मालदीव का ये मुकाबला था ग्रुप ए का, और यहाँ पर टॉस जीता था नेपाल ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 212 रन जड़े, 7 विकेट के नुकसान पे। कप्तान ने एक कप्तानी पारी खेली, 52 रन उन्होंने किए 27 गेंदों से। के माला माही, मैं समझता हूँ कि ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने वापस पटरी पे नेपाल को लाया। 67 पर 4 विकेट खोने के बाद 20 गेंदों से 47 किए। झा को भी एक अच्छी शुरुआत मिली, 21 गेंदों से 35 उन्होंने की, और बुथल ने ताबड़तोड़ अंदाज में 18 गेंदों में 35 रन जड़े और 212 तक पहुंचाया। और उसका पीछा करते करते ये आप देख सकते हैं बल्लेबाजी पूरी तरीके से ढह गई। एम.ए. घानी ने जरूर 30 के ऊपर रन्स किए, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी। एक थोड़ा सा ध्यान में आपका अर्जित करना चाहूँगा, जो नए स्टार्टअप की टीमें हैं, आप नेपाल को लीजिए, डोमिनेशन क्रिकेट उन्होंने खेला है और इस पूल में उनकी दूसरी जीत है। एक मुकाबला मालदीव ने भी जीता है, लेकिन कहाँ पर वो अनुभवहीनता, अभी जो एक टर्म मैंने यूज़ किया था, आपको लगता है कि ये ज़्यादा सीखे नहीं या फिर बड़े मंच पर जाकर वो प्रदर्शन बिखर गया? नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी इनकरेजिंग थिंग जब आप देखते हैं कि बाकी जो सब कॉन्टिनेंट के जो टीम्स हैं वो भी अगर क्रिकेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग। हम लोग ब्रेक के समय बात भी कर रहे थे कि किस तरह से एक बार श्रीलंका 70s और 80s में उभरता हुआ आ रहा था, आज श्रीलंका टॉप प्लेइंग क्रिकेट नेशन है। वैसे आई एम श्योर बांग्लादेश को भी हमने देखा, अफगानिस्तान को भी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी निशानी है क्रिकेट के लिए कि नेपाल और मालदीव दोनों जो है, अब एक आप इमेजिन कर सकते हैं अगले 10 साल में कि जो टॉप टीम्स हो सकता है सारे सब कॉन्टिनेंट्स हो क्रिकेट में। पाकिस्तान, इंडिया तो ही, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, सो एंड मालदीव। व्हाट ए ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंस इंडिया से अगर हो जाए कि ये 6-7 कंट्रीज वर्ल्ड के टॉप पास हो जाए क्रिकेट में अगले 10 ईयर्स में। कोई शुबा नहीं है इसमें। एक और सवाल मैं आपसे लूँगा, गेंदबाजी की जहां तक बात है, मालदीव ने शुरू किया था वो लैक ऑफ पेस की तरफ जा रहे थे, ज़्यादा उन्होंने गति दी नहीं, वहां से 4 विकेट उन्होंने झटकी, लेकिन बाद में जाकर फिर मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ तो फिर वो जो एक ही हथियार था, बहुत प्रेडिक्टेबल आई थिंक वो हो गया, उसके बाद वो वापसी नहीं कर पाए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नेपाल के तेज गेंदबाजों को देखें, वहां रफ्तार भी थी, स्विंग भी था, वो डराने धमकाने वाला एक एटीट्यूड भी दिखा। देखिए, ये बात तो जाहिर था पूरे मैच के पहले भी था कि नेपाल का जो लेवल है वो क्वाइट हाई स्टैंडर्ड है मालदीव्स के कंपेयर में। पहला 10 ओवर फिर जब हमने देखा कि नेपाल की इनिंग थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में वो संभल गए और अपनी अथॉरिटी को स्टैम्प कर गए पूरे मैच में कि उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो लेवल है मालदीव से कहीं ऊपर है। और यही बात फिर बॉलिंग में दिखा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि निपी उनके जो बॉलर्स थे क्वाइट फास्ट, क्वाइट इफेक्टिव थे, जो इस लेवल के टूर्नामेंट्स में होता है। चलिए जल्दी से अब बात कर लेते हैं मेडल टैली के ऊपर। ओवरऑल जितने देश हैं और कहाँ पर कितने पदकों की संख्या ज़्यादा है, गोल्ड किसके पास कितने, अगर ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर है तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ यहाँ पर ओवरऑल मेडल टैली की क्या स्थिति है यहाँ पर पोडियम पे। बहुत दिलचस्प सा है, अभी भी 2-3-4 दिन और एक्शन के बाकी, 8 अक्टूबर तक ये कारवां चलेगा, तो ये ऊपर नीचे टैली हो सकता है। फिर भी आप देख सकते हैं ये मेडल टैली 19th एशियन गेम्स, 19वां ये बेहतरीन संस्करण। चाइना होम कंडीशंस तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी, उनका परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें ये बयां करती हैं कि आपके खाते में 114 गोल्ड है और 69 रजत पदक और 34 कांस्य पदक, और पदकों की कुल संख्या है 217, डबल 100 लग गया यहाँ पर। जापान उनको फॉलो कर रहे हैं, 106 कुल मिलाकर उनके पास पदक है, और तीसरे नंबर पे हैं साउथ कोरिया, और इंडिया की स्थिति है चौथे पायदान पर अभी भी बनी हुई है। लेकिन भारत के पास मौका है एथलेटिक्स से। अभी आप बात कर रहे थे कि काफ़ी यहाँ से मेडल और भी बढ़ने की संभावना है, मैं वहीं पर आपको लेकर जा रहा हूँ। फिलहाल ये कर लेते हैं, चाइनीज़ ताइपेई वहाँ पर हैं, थाईलैंड वहाँ पर है, हांगकॉन्ग, चाइना है, लेकिन उतने सारे शायद उनके पास पदक नहीं है। लेकिन टॉप 3
China, Japan, South Korea, and of course India on 38th number 4. सी माई टेक अवे फ्रॉम एथलेटिक्स होगा एशियन गेम्स में, आप सिर्फ मेडल टैली को ना देखें, आप देखें इंडिया जो इस वक्त ट्राई कर रहा है कि कुछ इवेंट्स में वो वर्ल्ड क्लास होने की कोशिश कर रहा है. अभी रिले बाकी है, अभी जैवलिन थ्रो ऑब्वियसली नीरज इज दी हॉट फेवरेट, और 1500 मीटर्स में भी जो देखने को मिलेगा मेन और वुमेन में, I think we can expect some international class performance. Absolutely. Steeple chase maybe. So I think we should watch out more कि international class performance कितना इंडिया दे पाएगा, rather than just focus on medals. Medals तो आएंगे, athletics में अभी at least 7-8 medals तो आना चाहिए आज और कल सुबह तक. चलिए आएंगे नहीं सर, एक आ गया है आदिति अशोक, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया. हालांकि जो पदक का रंग हम एक्सपेक्ट करते वो तो नहीं है, लेकिन सिल्वर मेडल उन्होंने गोल्फ में यहाँ पर प्राप्त किया. एक अच्छी खासी कामयाबी, और कल तक जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, हम बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे कि आशावान थे कि ये हमें गोल्ड मिलने वाला है, लेकिन सिल्वर ही से पदक तो है, और अच्छा खासा उनका कॉन्फिडेंस भी, कमाल का प्रदर्शन. नहीं, वंडरफुल परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली एज फैंस एंड सपोर्टर्स ऑफ आदिति, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि गोल्ड, क्योंकि पिछले ओलंपिक गेम्स में 4th फिनिश की, कल तक वो फेवरेट लग रही थी गोल्ड के लिए, बट दीज थिंग्स हैपन. वो स्पोर्ट्स में होता है, लास्ट मोमेंट में चेंजेस होता है, but I think it's been a wonderful performance, and I'm sure she'll go from strength to strength for the coming Olympic Games. बाकी जो उनके LPGA टूर हैं जहाँ खेलती हैं, she'll do very well. Absolutely, she will do very well. लेकिन चलिए फाइनल में जब हम आ जाते हैं, तो फाइनल में वो दबाव कैसा होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे. फिलहाल हम चल रहे हैं लाइव एक्शन टेबल टेनिस की तरफ. अभी से 10 मिनट बाद. Why not wrap it up with Fan Zhendong bringing out a cracker? It's low on the forehand drive, decides to win the point with a deep smash to the baseline. There's a deep spinning shot right to the end of the table. I'm happy with that one. Look of approval from the Chinese coach, Wang Hao, the former 2009 world champion, winning that title in Yokohama, Japan. He's also a 3 times World Cup champion. He's pleased with his troops at the moment, and why wouldn't he be? The best of 7, China leading 3 games to love. And whatever happened on the practice tables was working for China. Better start from the Islamic Republic of Iran in this game. They'll have to turn it up a notch in the spin game, especially. You watch them use their loose grip, try and get some extra spin and some more racket speed on the shot. But when it comes at you that fast and furious, and all you can do is bring